everyone, welcome to the channel Bioverse with Pallavi, your go-to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. In the previous videos, we have completed the chapter 1, The Living World for class 11 biology. If you haven't watched the complete explanation yet, you can find that entire series in the playlist that is available on this channel. Together with that, for your ease, I'll add the link of the chapter in the comment section. In today's video, we are going to solve the important MCQs, assertions, and certain other short and long questions related to this chapter on the CBSE board examination pattern that will help you strengthen your concepts and boost your examination preparation. So let's get started with the very first question. The first question here talks about which of the following is the basic unit of classification. Take your time and then we'll discuss the answer. So, the basic unit of classification is going to be option A is genus, B family, C species, D order. So, the correct option is going to be species, because here what happens is it is the lowest category, and together with the lowest category ये क्या करता है, it becomes the foundation for classification, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास characteristics होती हैं बहुत precise होती हैं for a particular species. Moving on to the next question. The scientist who proposed the biological species concept is A is Carolus Linnaeus, B Ernst Mayr, C Charles Darwin, D Robert Whittaker. Think about the answer for a minute. So the biological species concept was been proposed by Ernst Mayr. That is why he was also been called as the Darwin of the 20th century. Moving on to the next question, question number 3. You have to tell the correct sequence of the taxonomic hierarchy. Think about the answer. So we know that the species is going to be the lowest category, the foundational one, but it always starts from the kingdom. So the correct answer would be kingdom, phylum, class, order, family, genus, and finally the species. Next question. Question number 4. Which one of the following is a taxonomic category? A. Taxonomy, B. Classification, C. Genus, D. Systematics. So the answer is which of the following is a taxonomic category. So category की बात करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा genus, क्योंकि taxonomy, classification और systematics तो वो methods हैं, principles हैं, procedures हैं जिनके थ्रू हम classification करा पा रहे हैं. Moving on to the next question number 5. Taxonomy deals with A. Evolution only, B. Identification, nomenclature and classification, C. Ecology, D. Physiology. So the correct answer is going to be 5B. Identification, nomenclature and classification. पहले हम सारे characteristics को observe करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद नॉमेनक्लेचर हम जो है फॉलो करते हैं, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज में जब क्लासिफाई करते हैं तो हमें मिलता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. क्वेश्चन नंबर 6. Which taxonomic category contains closely related genera?
तो अब यहाँ पे पूछा है क्लोजली रिलेटेड जेनरा किस में होंगे, तो इसमें हम हायर कैटेगरी की बात करेंगे. सो ऑप्शन ए इज ऑर्डर, बी फैमिली, सी क्लास, डी स्पीशीज. और हमें पता है कि हमारे पास जीनस से पहले जो आता है वो होता है फैमिली. तो फैमिली में हमारे पास क्लोजली रिलेटेड जेनरा होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज 6B, दैट इज फैमिली. Moving to question number 7. Scientific names are written in which language? A is Greek, B is Latin or Latinized form, C is English, D is Sanskrit. So as we had discussed, either the origin has to be in the Latin form, or what we are going to do is हम उस language को Latinize कर देंगे. तो द करेक्ट आंसर इसका होने वाला है 7th B, Latin और Latinized form. Question number 8. Panthera leo and Panthera tigris, they belong to the same. Option A is species, B is family, C is genus and D is order. क्योंकि यहाँ पे पहला जो नाम है that is the generic epithet वो same है, तो इसका मतलब they belong to the same genus. Option number 8C. Moving on to the next question. Which one represents the highest taxonomic category among the following? A is order, B is family, C class, D kingdom. एक बार इस आंसर के बारे में सोच लीजिए. The correct answer we are talking about is the highest taxonomic category. तो अगर lowest taxonomic category species है तो highest taxonomic category is the kingdom. क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 9D. Next is question number 10. The suffix ACA, wherever you see CEAE, is generally used for option A, animal families, option B, plant families, option C, order, and option D is classes. So the correct option is going to be 10B, plant families. Moving on to the next question, question number 11. Which pair belongs to the same family? A is lion and tiger, B is potato and mango, C is wheat and rice, D is human and monkey. तो सेम फैमिली की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 11A, lion and tiger. Question number 12. In biological nomenclature, the first word indicates A is species, B is family, C is genus, and D is kingdom. Your correct option is going to be option number C, genus. Moving on to the next question, here we are discussing certain high order thinking questions. Question number 13 कह रहा है कि एक हॉर्स और एक डंकी मेट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूल, बट म्यूल कैसा है? स्टेराइल है. तो क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस इंडिकेट? ए इज हॉर्स एंड डंकी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. Horse and donkey are different species due to reproductive isolation. Mule is a new species. And D is fertility is not important in the species concept. मैंने आपको उस biological species concept बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था. Take your time for a few minutes and think about the answer कि इसमें हमारे पास ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है.
So the children, the answer is going to be option number B. अगर हम बात करें according to the biological species concept, किसने दिया था ये? अभी तक आपको रिकॉल कर लेना चाहिए, अर्नस्ट मेयर ने। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स बट एक ही स्पीशीज के, तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, वो कैसा होता है? फर्टाइल। बट अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ जो स्पीशीज है वो दो डिफरेंट टाइप की है, अब इसके मेंबर्स अलग हैं, इसके मेंबर्स अलग हैं, तो इसका मतलब दे आर नॉट द सेम स्पीशीज, ये कैसे हैं? डिफरेंट स्पीशीज हैं। और जब भी स्पीशीज डिफरेंट होगी, मेट भले ही कर लें, बट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड होगा इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी स्टेराइल। तो वो जो है फर्दर जो है रिप्रोड्यूस करके इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी अदर फर्दर स्पीशीज, कोई स्पीशीज नहीं बनेगी और वो स्टेराइल होगा। तो यहाँ पे जो चीज ऑपरेट कर रही है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, दैट इज reproductive isolation. So the correct answer that we were talking about is horse and donkey are different species due to reproductive isolation. Next, question number 14. Two organisms, they look very similar, but they cannot produce fertile offsprings. According to the biological species concept, they should be considered as what? Option A is same species. Option B is different species. Option C, same genus only. Option D, same family only. अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 13 में जो पढ़ा है, एक बार उसके बारे में सोचिए एंड आई विल देन डिस्कस द आंसर विद यू। हमने बात करी कि जब भी अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टेराइल। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है? दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बट दिखने में वो सिमिलर हैं। और अगर वो दिखने में सिमिलर हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़रूरी नहीं है कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। और रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं ना सिर्फ देखने में सिमिलर हो, कि मतलब उनकी फिजिकल रिजेम्बलेंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल रिजेम्बलेंस के अलावा उनकी रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्टिवली वो कंपैटिबल हैं तो इसका मतलब तभी दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द प्रोजेनी जो कि फर्टाइल होगी। और अगर प्रोजेनी फर्टाइल है तब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। यस, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि टू ऑर्गेनिजम्स दे लुक वेरी सिमिलर बट वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं मतलब रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ ऑपरेट कर रही है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा इसका मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल होगा, एंड दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज एंड नॉट द सेम स्पीशीज। आई होप चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Now I have few questions related to assertion and reason from this chapter. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और रीजन कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो बात सही है कि स्पीशीज हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिक फाउंडेशनल यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास प्रिसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो असर्शन तो हो गया हमारे पास ट्रू। रीज़न भी इसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर हमारे पास स्पीशीज़ के जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं,
So this is also going to be true. And since the assertion is explaining the reason, your option is going to be 15A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Moving on to the question number 16, assertion कह रहा है as we move from the species to the kingdom, the number of common characteristic decreases. बात सही है. यहाँ पे हमने बात करी थी कि हमारे पास जो स्पीशीज होती है यहाँ पे हमारे पास होते हैं पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रही है. और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स भी तो डिक्रीज हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जब हम किंगडम तक पहुंच जाएंगे तो कॉमन फीचर्स विल ऑल्सो डिक्रीज. So as we move from species to kingdom, the number of common characteristic decreases. True. Now, reason is saying higher taxonomic categories contain organisms with greater diversity, and that we have already discussed. So this is also true. तो ये इसे जस्टिफाई कर रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्पीशीज से किंगडम में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होंगी, क्योंकि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे पास ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन हियर इज गोइंग टू बी both assertion and reason are true, and reason is correctly explaining the assertion. Moving on to the next question, this is the match the following. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जस्ट गो थ्रू देम एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन. एक बार आप मैच करके देखिए कि आपको यहाँ पे अब तक चैप्टर पढ़ के क्या चीजें समझ में आ गई हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की या फिर नॉमेनक्लेचर की. तो हमें जो ऑप्शन मिल रहा है लग रहा है कि A4 होना चाहिए. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है ना तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ना ही अरेंजमेंट. इट इज टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक नेमिंग, मतलब हम बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. तो हो गया हमारे पास B का 2. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाते हैं. तो इसका मतलब C का हमारे पास ऑप्शन हो गया क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट इनटू द ग्रुप्स. एंड फाइनली देखते हैं कि हमारे पास D का क्या बोल रहे हैं. सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझना. वेरी ट्रू. सो लेट अस सी हमारे पास ऑप्शन कौन सा होने वाला है. So the correct option that is going to be there is option number A. Moving on to the next question. This is a short answer type question. They're asking differentiate between taxonomy and systematics, and why is systematics considered a broader field than the taxonomy. तो व्हाट वी सी इज चिल्ड्रन कि जब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी में इतना हम पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात करते हैं. एक होता है कि कैसे हम उस बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफिकेशन के बाद हाउ वी आर गोइंग टू गिव देम अ नेम, नाम कैसे देने वाले. और नाम दे दिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया, तो इनको हम किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में डालने वाले हैं. सो इट टॉक्स अबाउट दिस. तो इसमें हमारे पास वो सारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो इस सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं. जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स क्या हो जाता है, यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ों को जब समझने वाले होते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से इवोल्यूशन ने शेप किया है इस ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन को. तो सिस्टमैटिक्स में हम ना सिर्फ इन चीज़ों की बात करते हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, उनका आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है.
नाउ दिस इज द डिफरेंस. दे आर आस्किंग कि सिस्टमैटिक्स ब्रॉडर फील्ड क्यों है, कि मतलब ये हमारे पास सिस्टमैटिक्स हो गया और इस सिस्टमैटिक्स के अंदर टेक्सोनॉमी है. इसलिए होता है कि जब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी का काम है टू एक्सप्लेन हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब वो रिलेटेड कैसे हैं, उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशन में हाउ दे हैव अडेप्टेड, हाउ दे हैव सर्वाइव्ड एंड हाउ दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें बताता है सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स बिकम्स अ ब्रॉडर अम्ब्रेला अंडर विच यू कैन फाइंड द टेक्सोनॉमी. Now, question number 19 says, explain the taxonomic hierarchy with the help of an example. So here the example that we are going to take, that is even discussed in your NCERT, is Homo sapiens. Homo sapiens का मतलब हम बात कर रहे हैं humans की. तो हम taxonomic categories को पहले लिख लेते हैं. The highest taxonomic category that we talk about is kingdom, phylum. Think about the next. Yes, class, order, family, genus, species. Now children, what you need to remember is कि जब भी हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करेंगे तो जीनस एंड स्पीशीज इस तरीके से वर्टिकल चेम्बर में हम लिखेंगे, और जब हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तब हम नाम इस तरीके से लिटरल फॉर्म में लिखेंगे. ओके, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स हैं, तो किंगडम बिकम्स एनिमेलिया. क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड इज बीन रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा. ह्यूमंस के पास मेमोरी ग्लैंड है एंड द बॉडी इज completely covered with hair, so here the class becomes Mammalia. हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हम ऑपोजिबल थंब रखते हैं. अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको मैंने डिस्कस भी किया है अपने प्रीवियस उसमें, तो हमें कैसे पता चलने वाला है कि हम ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं, ऐसे कौन से हमारे पास वो फीचर्स हैं. हमने लिख लिया ऑर्डर प्राइमेटा. तो ऑर्डर प्राइमेटा में हमारे पास जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसका मतलब होता है कि हमारे पास ऑपोजिबल थंब है, जिस वजह से हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं. उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फ्रंट फेसिंग विजन है, इस वजह से हम ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं. देन फैमिली क्या हो जाएगी, होमिनिडे. अब होमिनिडे का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब हम फर्दर प्रिसाइज बात कर रहे हैं, तो होमिनिड्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बहुत सारे ग्रेट एप्स आ रहे हैं. यस, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो हमारे पास होमिनिडे में पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो है एक्सटिंक्ट फॉर्म्स जो है ह्यूमन से क्लोजली रिलेटेड थे, तो हमने होमिनिडे में इनको डाल दिया था. नाउ जीनस हमें पता ही है, इट इज होमो, अंडरलाइन, सेपियंस, अंडरलाइन. अंडरलाइनिंग हमें नहीं भूलनी है, और कैपिटल और लेटर का भी ध्यान देना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स होंगे जीनस में, कहाँ स्पीशीज में हमारे पास स्मॉल केस प्रेजेंट होगा. सो दिस इज हाउ यू राइट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की with each of the taxonomic categories. Here is how you write the scientific name. The scientific name that you have followed is through binomial nomenclature. Moving on to the next question. Next question is saying, what is binomial nomenclature? Now, binomial nomenclature क्या है और उसके हमें बात करने हैं rules और उसकी इम्पोर्टेंस. तो जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं चिल्ड्रन, सो हियर व्हाट यू टॉक अबाउट इज यू हैव टू पार्ट्स ऑफ द नेम. द टू पार्ट्स ऑफ द नेम, द फर्स्ट पार्ट बिकम्स द जेनेरिक epithet, and then the second part becomes the
specific epithet. ये binomial nomenclature किसने दिया था? It was been given by Carolus Linnaeus. Then, now we have to discuss the rules. So first rule that we are talking about is the scientific name consists of two parts of the name, that is the generic epithet and the specific epithet. Second is the generic epithet is called as the genus and the specific epithet is called as the species. Third is the generic epithet or the genus that we talk about, the first letter is going to be the capital one, and when we talk about the species, it is to be written in the lower case. Next thing is, when we talk about the biological scientific name, in that case what is going to happen is, when you are writing it by hands, means when it is handwritten, तब हमें क्या करना होता है? We have to underline both the genus and the species separately. और यही चीज when we are doing the typing, printed form में present है, then we need to do is, we need to italicize them. Next thing is, these names should be derived from which language? Either the Latin language, and if they are not been derived from the Latin language, तब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? Latinize करना पड़ेगा. So this is how, children, we talk about the binomial nomenclature और उसके rules. और इसकी importance क्या है? इसकी importance ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक redundancy आ रही थी because of the vernacular names, वो हमारे पास क्या हो गई? Remove हो गई. अब क्या होता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में आप इस तरीके के नाम्स को यूज करके कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन पॉसिबल कर सकते हैं. So students, that's all for today's discussion, and I hope you have understood each and every type of question that I had tried to put this in this today's discussion, and it has helped you revise the chapter in a more effective manner. If you have found this video useful, so don't please forget to like, share and subscribe to the channel BioVerse with Pallavi. We'll continue with more board level questions, and even in the next video I'm going to discuss certain NEET level questions from this chapter. Till then, keep learning, keep exploring, and remember, BioVerse with Pallavi will never let any of your doubts go unnoticed. See you in the next one.